بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا دماغی مریض تھا، پاگل پن کے دورے پڑتے اور وہ سب کو مارنے لگتا۔ جب اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوا تو میں نے جھوٹ بول کر اس کی شادی ایک غریب مسکین لڑکی سے کروا دی۔ شادی کے بعد وہ روز شام کو دھاڑے مار مار کر روتی، اور جب کمرے میں جاتی تو میرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ جب میں نے دیکھا وہ روز شام ہوتے اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوتی ہے اور واپس کمرے میں جا کر اس کو میرے بیٹے کی جیب میں ڈال دیتی ہے، مجھے اس پر شک تھا۔ میں نے اگلے دن اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھینی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، اس میں تو میری ہی۔ اذلان کو آج پھر دورہ پڑا۔ ماں نے اسے بمشکل سنبھالا، مگر جوان لڑکا ایک بوڑھی 50 سال کی عورت سے کیسے سنبھالا جاتا؟ وہ اب اسے سنبھالتے سنبھالتے عاجز آ چکی تھی۔ گھر میں اذلان کی ماں اور وہ بس 2 لوگ رہتے تھے۔ اوپر والے پورشن میں کرائے دار ہوتے۔ وہ جب کبھی انہیں آواز دیتی تو وہ مجبوراً آ جاتے کہ وہ مالکن تھی اور وہ کرائے دار، مگر کب تک کوئی سنبھال سکتا ہے؟ سب اذلان کی ماں کو مشورہ دینے لگے کہ کسی غریب مسکین لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، دولت کے لالچ میں کوئی نہ کوئی رشتہ دے ہی دے گا۔ اذلان کا باپ ایک برے کردار کا انسان تھا۔ ایک بہن اس کی شادی شدہ تھی۔ اذلان کے باپ کو اس کے کردار کی وجہ سے خاندان بھر میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی ماں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اذلان کی شادی ایک غریب لڑکی سے کروا دی۔ یہ لوگ کافی خوشحال تھے اور غریب لوگوں نے ان کی دولت کی فراوانی دیکھ کر جھٹ رشتہ تو دے دیا، مگر اذلان کی دادی نے بہو کو ایک دن بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اذلان کے خاندان والے باتیں بناتے کہ یہ کیا کیا تم نے، اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ اپنے سے بہت کم حیثیت والے لوگوں میں کر کے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اوپر سے اس کا بچہ بھی ہونے والا ہے۔ خاندان میں چند گھرانے کی لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، ان کو احساس ہوا کہ کاش ہم ہی اپنی بیٹی ادھر دے دیتے، کیونکہ اذلان کے باپ کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ دلہن کو زیورات سے لاد دیا گیا، بری کے سوٹ بھی قیمتی بنائے گئے۔ دراصل اذلان کی دادی نے جان بوجھ کر اپنے خاندان والوں کو یہ دکھانے کے لیے بھی کیا کہ تم لوگ اگر رشتہ دیتے تو یہ سب کچھ تمہاری بیٹی کا ہوتا۔ اس نے اپنی زمین جائیداد بھی بہو کے نام کر دی کہ بیٹا تو ساری جائیداد اپنی عیاشیوں میں اڑا دے گا، بہو کی کیا مجال ہوگی، ساری جائیداد گھر میں ہی رہنی ہے۔ اس وقت اس نے صرف خاندان والوں کو نیچا دکھانے کے لیے شوہر کی اس تجویز کو خوشی سے مان لیا اور یہ شرط رکھ دی کہ بچہ ہونے کی صورت میں یہ جائیداد بہو اس کے 18 سال کے جوان ہونے تک بیچ بھی نہیں سکے گی، اور اگر بیٹا طلاق دیتا ہے تو یہ ساری جائیداد بہو کو ملے گی۔ اذلان کا باپ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میری بیوی بہو کو غریب اور حقیر جان کر اسے تانے دیتی رہے گی، اور اگر اس نے سب کچھ بہو کے نام کر دیا تو بیٹا بھی اس بندھن کو نبھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے لڑکی والوں کے بارے میں سب معلومات حاصل کر لی تھی جو تسلی بخش تھی۔ وہ لوگ پورے خاندان میں شریف اور نیک مشہور تھے۔ اذلان کی دادی خاندان والے کے بیٹے کو رشتہ نہ دینے پر سخت برہم تھی۔ اس نے یہ بھی ان کے بارے میں سنا تھا کہ اس کے بیٹے کو رشتہ دینے کی بجائے اسے ساری زندگی کنواری رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بات نے اس کے دل میں غیرت جگا دی اور اس نے جوش میں آ کر شوہر کی بات مانتے ہوئے جائیداد اور زیورات سب بہو کے نام نہیں کیا، بلکہ اس کو سیف کی چابی بھی دے دی۔ ادھر اذلان کی دادی نے خاندان والوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس بات کو سارے خاندان بھر میں نشر بھی کر دیا کہ ہم نے سب کچھ بہو کے نام کر دیا ہے۔ خاندان والے تو حیران رہ گئے اور بہت پچھتاتے اور سازشیں کرنے لگے کہ کسی طرح وہ اپنی بہو کو گھر سے نکالے اور ہماری بیٹی کو قبول کر لے۔ اذلان کے باپ کو بھی پہلی نظر میں ہی بیوی پسند آ گئی اور وہ سدھرنے لگا۔ ادھر خاندان والوں کو دکھ تھا کہ وہ تو اب سدھرنے لگا ہے۔ اذلان کی دادی کو ہر وقت احساس دلاتے کہ بیٹے کی شادی پوری نسل آگے بڑھانی ہوتی ہے تو کم سے کم کوئی خاندانی اور اپنے برابر کے ہونے چاہیے جو کسی سے ملواتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اب تمہارا بیٹا دنیا کے آگے کتنی شرمندگی محسوس کرتا ہوگا کہ یہ میرا سسرال ہے، تو نے پاؤں کی جوتی کو سر پر لا دیا ہے، جوتی کو عزت سے سر پر رکھو تو اور بے عزتی ہوتی ہے۔ اب اذلان کی دادی پچھتانے لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد بہو کے نام کر کے تم نے اپنے پورے خاندان کو اس کا دستے نگر بنا دیا ہے۔ اب وہ ساری چیزوں کی مالکن تو جلد ہی سب کو نکال دے گی، شوہر کو نہ بھی نکالے تمہیں ضرور نکال دے گی۔
वैसे भी सास हर किसी की आंख में खटकती है। अब तो बेटे को भी आते ही उसने अपने बस में कर लिया है। वो बहुत चालाक और मक्कार लड़की है। तुम्हारा शौहर भी अब उसके गुण गाता है। वो शौहर की नजरों में अच्छी बन चुकी है कि जिसके आते ही उसका शौहर सुधरने लगा है। एक खानदान की औरत ने उसे भरना शुरू कर दिया कि किसी तरह उसकी बहू निकले और वो अपनी बदजबान बेटी को इधर लगा सके, जिसको कोई उसकी आदत की वजह से कबूल नहीं करता था। उस औरत ने उसे पट्टी पढ़ाई कि बेवकूफ़ औरतों की तरह उससे लड़ाई झगड़ा करके खानदान भर में अपनी बदनामी मत करवाना, वरना तेरा बेटा और शौहर तेरी बदसलूकी की वजह से और उसको मजलूम समझकर उसकी तरफदारी करने लगेंगे और तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। दरअसल बेटा हमेशा माँ की बात पर भरोसा करता है, तो उसको ऐसे जाहिर करो बहू से प्यार जितना उसकी तारीफें करके बेटे का और शौहर का एतमाद हासिल करो। जब एतमाद बहाल हो जाए तो फिर जो भी कहेगी तेरी सुनेगा, बीवी की नहीं। उधर बीवी को माँ ने कहा कि तू ऐसा कर, अपने जेवरात सारे अपने हाथों पर दस्ताने पहनकर इनको डब्बों में से निकाल कर अपने तकिए में छुपा ले। तेरी सास बहुत चालाक तो बनती है मगर कच्चे कानों की है। वो जेवरात तेरे पास रहने नहीं देगी और उसके पास भी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। पैसे सुसर से कहकर बैंक में रखवा दो, फिर मौका मिले तो सुसर को एतमाद में लेकर सारे जेवरात बैंक के लॉकर में उनसे कहकर रखवा देना। अभी सास बैंक में रखवाने नहीं देगी। वो कहती है कि अचानक कहीं जाना पड़े तो बैंक से कौन लेने जाए। आजकल एक रिश्तेदार बहर आकर कान भर रही है। उसकी मुझे तेरी काम वाली ने सारी बातें बताई हैं जो तेरी हमदर्द है। वो कहती है कि ये औरत जिसे आजकल तेरे घर में तेरी सास के पास बहुत आ रही है, उसकी बेटी बहुत तेज जबान की है। किसी ने तेरी सास को मशवरा दिया था कि अपने बेटे के लिए उसकी बेटी कर ले। तेरे बेटे को कोई मिल नहीं रही, उसको कोई कर नहीं रहा, तो तेरी सास ने कहा था तौबा करो, उस जैसी से तो मैं 100 गज दूर पनाह मांगू। वो दुनिया की आखिरी लड़की भी बचे तब भी ना करूं। उस तक किसी ने ये बातें पहुंचा दी तो अब वो कहती है कि उसके बेटे का घर भी बसा रहने नहीं दूंगी। अब वो इंतकाम में किसी हद तक भी जा सकती है। अजलान की माँ ने जब सास पड़ोस में मिलाद पर गई तो उसने ऐसे ही जल्दी जल्दी हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर जल्दी से सब तकिए में एक थैली बनाकर डाल दिए, बाकी डब्बे इसी तरह रख दिए। सास आई तो बेटे से बोली मुझे कुछ पैसे सेफ से निकाल कर दे दो। वो लापरवाही से बोला अम्मा बहू के पास है ना चाबी, उससे कहकर निकाल लो। सुसर पास खड़े हुए थे। उन्होंने बहू को आवाज दी। वो जल्दी से भागी आई तो सुसर ने कहा कि अपनी सास को सेफ से पैसे निकाल दो। वो चाबी लेकर आई और सुसर को पकड़ाकर बोली अंकल जी, मैं शाम को चंद दिनों के लिए मामा के घर जा रही हूँ, तो अब मैं मजीद ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। जब घर में मुझसे बड़ी बुजुर्ग मौजूद हैं तो फिर मुझे शर्म आती है। उसके सुसर ने खुश होकर उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। वो जब भी जाती शौहर से कहती कि वो अपना तकिया भी साथ लेकर जाएगी, उसके बगैर उसे नींद नहीं आती। वो तकिया उसने गाड़ी में रखा और माँ के घर चली गई और पहला काम ये किया कि सारे जेवरात बाप के साथ जाकर लॉकर में रखवा दिए। एक दिन बाद ही उसे सास ने वापस बुला लिया। एक माह खैरियत से गुजर गया। उसकी तबीयत खराब रहने लगी क्योंकि वो उम्मीद से थी। शौहर भी बच्चे के नाम से खुश होने लगा। सुसर ने सारे खानदान में मिठाई बांटी। वो रूटीन चेकअप के लिए मुलाजमा के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। शौहर अपने बिजनेस में मसरूफ रहता। सुसर बहुत खुश थे कि उसके आने से बेटा जिम्मेदार हो गया है और जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने लगा है। बाप को उसने बिठा ही दिया। सुसर ने उसको कारोबार करने में मदद की। अब वो बेटे से भी खुश थे और अब अल्लाह ताला उसे एक बच्चे से भी नवाजने लगा था। अचानक सास को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने सेफ खोला तो वैसे ही डब्बा चेक किया तो वो खाली था। उसने ज़ोर से चिल्लाकर शौहर को आवाज़ दी और बताया कि डब्बा तो खाली है। उसी दिन वो रिश्तेदार औरत आकर थोड़ी देर पहले गई थी। बहू हॉस्पिटल थी। सारे डब्बे चेक किए गए। बेटे को बुलाकर बताया गया। सास ने बहू का नाम लगाने की कोशिश की तो सुसर ने डांट कर झड़क दिया और कहा कि वो बेचारी तो सुबह से हॉस्पिटल में ड्रिप लगाकर लेटी हुई है। अभी मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई है। बेटे ने कहा कि पुलिस को फ़ोन करें तो सुसर ने कहा कि देख लो, पुलिस पूछेगी आज घर में कौन कौन आया था, फिर रिश्तेदारी का मामला है, इनको भी पुलिस शामिल तफ्तीश करेगी, दुश्मनी पड़ जाएगी। वो बुरे लोग हैं, जेल काट कर आए हैं, अब जो होना था हो चुका। पैसे भी देखो कम है क्या।
बेटे ने कहा कि काफी पैसे कम हैं। अब क्या करें? बाप ने कहा जब तक बहू के पास चाबी थी कोई चीज चोरी नहीं हुई, अब तो सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकते। वो सर पकड़ कर बैठ गया। शौहर ने सास को बहुत बेइज्जत किया, सख्त सुस्त कहा। सास ने रोते हुए उस रिश्तेदार औरत को कोसते हुए कहा कि वो कमबख्त वॉशरूम भी गई थी और मैं भी वॉशरूम गई थी। मैं भी उसे अकेले कमरे में छोड़कर किचन में उसके लिए पानी लेने गई थी। ससुर ने कहा कि पुलिस का घर बुलाना दुरुस्त नहीं, शुक्र करो माल गया है, किसी की जान नहीं गई। ऐसा ना हो कि पुलिस को बताने से वो किसी की जान के दर पे हो जाएं। बहरहाल वैसे सारे खानदान को फोन करके बता दो ताकि अगर उन्होंने चोरी की है तो डर जाएंगे। हम सोच रहे हैं पुलिस को बुलाने का। सास ने सबसे पहले उसे ही फोन करके बताया कि वो पुलिस बुलाने लगी है। वो डर कर बोली, आज तो मैं भी आपके घर आई थी, अगर पुलिस बुलाओगी तो वो हमें भी पूछेगी, हम मुफ्त में पिस जाएंगे। बहू वापस आई तो उसे जब ये बताया गया कि ये वाकया हुआ है तो वो परेशान हो गई कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। उसकी हालत देखकर ससुर ने समझा कि शायद उसे जेवरात जाने का गम है। वो उसे तसल्लियां देने लगे। इतने में उसका फोन बजा तो उसके अब्बू ने बताया कि उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। सब अफरा तफरी में उधर चले गए। कुछ दिन इसी में गुजर गए। उसके ससुर ने बहू की माँ की फौतगी का सारा खर्चा उठाया। 1 हफ्ते के बाद उसके बाप की डेथ हो गई। उधर से उसकी प्रेगनेंसी थी, उसका बच्चा पैदा हुआ। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वालिदैन के ऊपर तले की डेथ से निढाल थी, ऊपर से बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो गई और उसे चंद दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। ससुर ने उसका बहुत ख्याल रखवाया। अजलान का बाप भी बेटे को पाकर बहुत खुश था। सास बहू की इतनी अहमियत पर बहुत जेलिस हो रही थी और वो दिल में उससे इंतकाम के मंसूबे बना रही थी। ससुर ने सारे हॉस्पिटल में मिठाई तकसीम की। सारा खानदान मुबारकबाद देने आया और बहुत से गिफ्ट भी मिले। अजलान के बाप ने दोस्तों ने ढोलक लाकर खूब नाच गाना किया। अजलान की माँ काफी हद तक बहल गई। ससुर ने जब नाम रखने का पूछा तो बहू ने कहा कि आप उसका कोई प्यारा सा नाम रखें। ससुर ने खुश होकर उसे ढेरों दुआएं दी, जबकि सास के सीने पर सांप लौट गए थे। उसे किसी मामले में भी नहीं पूछा गया था। हत्ता के नाम भी ससुर ने रखा अजलान। वो बेटे को कुछ और बता रही थी, मगर बेटे ने भी ये कहकर उसे जला दिया कि अब्बू वाला नाम ज्यादा अच्छा है और मेरी बीवी को भी पसंद है। इस बात को उसने अपनी अना का मसला बना दिया कि बेटा अब सबको कहता फिर रहा था कि मेरा तो दिमाग ही खराब था, न जाने क्यों मुझे इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता था। शायद काम काज नहीं करता था इसलिए, मगर जब से मेरी बीवी मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो किस्मत खुल गई है। उसके आते ही मेरा कारोबार फलने फूलने लगा। एक तो वो खूबसूरत भी है इतनी, इसकी आदत भी खूबसूरत हैं। मेरे वालिदैन की खिदमत गुजार है। मेरे अबू तो उसके गुण गाते हैं कि उसने आकर उनको पोते की खुशी से हमकिनार किया। हर तरफ से उसने मुझे सुकून पहुंचा रखा है, जिसकी वजह से मैं कारोबार में ध्यान दे पा रहा हूँ। खुद वो दुखों से चूर है। एक साथ उसने यके बाद दीगरे वालिदैन को खोया है। उसका अब हमारे सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ तो मेरी तरफ से मायूस हो चुकी थी। उसने एक गरीब घर से रिश्ता किया, मगर वो हमारे लिए रहमत बनकर आई है। सारा खानदान अब बहू की तारीफें करता था। ससुर ने बच्चे का अकीका करके सारे खानदान को गोश्त के पैकेट भी दिए और उनकी दावत भी की। अजलान की माँ इतनी अहमियत पाकर रफ्ता रफ्ता संभलने लगी। उसके बच्चे को महंगे स्कूल में डाला गया। बेटा 7 साल का हुआ तो दादा को अचानक दिल का अटैक हुआ और वो चल बसे। अब तो सास ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसे शौहर के जाने का इतना गम नहीं था जितना वो बेटे के सामने मजलूम बनकर बैन करती थी। वो बेटे को देखकर कहती कि औरत की शौहर के साथ ही इज्जत होती है। अब मेरे सर पर साहिबान नहीं रहा तो अब मैं बेवकत हो जाऊंगी। बहू तो वैसे भी अब उस घर की मालकन है। वो भी ससुर को ज्यादा अहमियत देती थी। मुझे तो वो कुछ समझती ही नहीं थी। मैंने कितनी मिन्नत की कि पोते का नाम मुझे रखने दे। मैंने तो सारे खानदान को भी कह दिया था कि अपने पोते का नाम मैं रखूंगी, मगर उसने ससुर से कहा कि वो खुद रखेगी। उसने ससुर का नाम लगाकर नाम अपनी पसंद से रखा, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। बेटा माँ की बातों पर हैरान हो रहा था और बीवी से बदजन। अजलान की माँ को पहले ही फिक्र थी कि अब उसकी खैर नहीं है। पहले तो वो ससुर के डर से कुछ ज्यादा नहीं कह सकती थी। वो फौरन एक्शन लेते थे। अब तो बात बात पर वो बेटे के कान भरने लगी और वो उस पर सख्ती करने लगा। वो अकेले में बैठकर रोती तो बेटा उसके नन्हे नन्हे हाथों से आंसू साफ करता, उसकी चोटों को सहलाता, क्योंकि बाप
अब उसे बुरी तरह मारता भी था। अब अजलान की माँ की अहमियत 2 टके की रह गई थी। उसे बात बात पर मारा जाता, बचाने वाला भी कोई नहीं होता। बच्चा बुरी तरह चीखता चिल्लाता तो दादी उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाती और उसको बहुत मारती। माँ को ये फिक्र लग जाती कि उसकी तो खैर है। दादी उसके बेटे को नील डाल देती। बेटे को उसने पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वो माँ को हर वक्त मजलूम समझता और उस पर भरोसा करता। बेटा आता तो जानबूझकर कोई चीज खाने लग जाती कि भूख लगी है। बहू ने शाम को ही रात का खाना दे दिया था कि मलका आलिया ने सोने जाना था। वो उसे सोता हुआ जगाकर माँ के लिए खाना बनवाता, क्योंकि उसका खाना बना होता था और वो लेट आता था। दो बच्चे ने सुबह स्कूल जाना होता था और उसने फजर के वक्त उठना होता था। शौहर को तरस आ गया और उसने कहा कि वो सो जाया करे और वो खुद खाना गर्म कर लेगा, मगर सास से ये देखा नहीं गया और जब बेटा आता तो उसे कहकर अपनी रोटी खुद पकाने लगती, साथ में कमजोरी की एक्टिंग करती। वो बीवी को जगा लाता, वो नींद से भरी आंखों से आती। सास की चालों को समझती थी मगर मजबूर थी। जब सास की रोटी पकाती तो वो बेटे की रोटी छान बुरे में डालकर कहती, मेरे बेटे की भी ताज़ी रोटी पकाओ। फिर बेटे के साथ बैठकर खाना खाते हुए उसको झूठी दिन भर की शिकायतें लगाती। रोटी की भूख ना होती मगर वो बहाने से उसे बातों में लगाकर अपनी रोटी छानपुरे में डाल देती। वो इसे इतना भर के उठती कि उसे बीवी की तरफ देखने का भी दिल ना करता। कई बार तो वो आधी रात को भी उससे लड़ने लगता। वो सफाई देती कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो वो और मारता कि क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है। बच्चा डर कर उठ जाता और खौफजदा होकर रोने लगता। दादी उसे बहलाने के बहाने अपने पास लेकर उसे लिटाकर जबरदस्ती सोने का कहती। बच्चे को माँ की फिक्र लगी रहती क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था। दादी ने उसे इतना डरा दिया कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तेरी माँ को मार दूंगी। उसे गम लगा रहता कि दादी मेरी माँ को मार ही न दे। स्कूल वाले भी उसकी शिकायत करने लगे कि ये जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहता है, उसके साथ कोई मसला है। स्कूल वालों ने काफ़ी मरतबा वार्निंग दी कि यह अब बच्चों पर तशद्दुद करने लगा है। उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। दादी ने कहा कि उसे मोहल्ले के स्कूल में दाखिल करवा दो। बच्चा अच्छे स्कूल से निकलकर वहाँ एडजस्टमेंट ना हो सका और उसके दौरे बढ़ने लगे तो उसे स्कूल से उठा लिया गया। सब खानदान वाले कहते कि इसके बाप को दौरे पड़ते थे इसलिए अब बेटे को पड़ते हैं, ये विरासती हैं। अजलान की माँ जानती थी कि वो इसकी जिम्मेदार है, वरना उसका बच्चा बहुत लायक था। टीचर्स उसकी तारीफ करती थी। अजलान की माँ को बच्चे को पढ़ाने का बहुत शौक था, मगर दादी और बाप के जुल्म बंद ना होते थे। बच्चा पागलपन में दादी को मारने दौड़ता तो बाप उसे दादी के बहकाने पर बहुत मारता। फिर बीवी की भी शामत लाता कि ये सब तुम इसे सिखाती हो, मेरी माँ से नफरत करती हो इसलिए, वरना वो तुम्हें क्यों नहीं मारता। वो अब कोई सफाई न देती, जानती थी कि कोई फायदा ही नहीं है, किसी ने यकीन नहीं करना। सारा खानदान, आस पड़ोस वाले सब जानते थे कि दादी जालिम है। बच्चे की स्कूल वैन बहुत जल्दी आती थी। अजलान की माँ जितनी भी जल्दी करे मगर सास साथ ही उठ जाती थी और पहले वो अपना नाश्ता बनवाती थी। अजलान की माँ उसको जल्दी जल्दी खिलाती, सास का नाश्ता बनाने में और देर हो जाती। अक्सर अभी 2 नवाले ही खिलाए होते तो वैन बाहर हॉर्न देती और बच्चे को भूखा भेजना पड़ता। सास सामने बेड पर टीवी लगाकर बैठ जाती और साथ बहू पर भी नजर रखती। उसने कभी बहू की पसंद से हांडी नहीं पकाई। बाहर अगर सब्जी वाला आता तो कभी कभार बड़े अच्छे तरीके से बहू से पूछती कि आज क्या पकाएं। वो उसके रवैये से खुश होकर कहती कि फलां सब्जी ले ले। वो जब देखती तो सास कोई और सब्जी लाकर मक्कारी से मुस्कुराकर उसे पकड़ाती। सास सारा दिन उसके पीछे पीछे फिरती रहती, हर वक्त उसके सर पर सवार रहती, हत्ता कि अगर वो छत पर कपड़े भी डालने जाए तो साथ जाती। छत पर सास ने पौधे रखे हुए थे। वो छत पर जाती तो बहू को होता कि शायद सास कपड़े उतारने लाए या कम से कम हवा से गिरे हुए तो उठा लेगी, मगर वो ना उठाती बल्कि उन पर पांव रखकर गुजर जाती, चाहे वो बेटे के ही क्यों ना हो। वो हांडी पकाने लगती तो पास सर पर खड़ी होकर टोकती कि ये चीज़ भी कम डालो और वो भी कम डालो, हत्ता कि 1 टमाटर और 1 प्याज वगैरह डालने लगती। मिर्ची और नमक भी कम डलवाती। जब बेटे के पास खाने को बैठती तो कहती कि ज़रा भी मज़े की हांडी नहीं बनी है, ना नमक ना मिर्चें। बहू अगर ऊपर पोर्शन में मशीन लगाती तो सास डेली उससे टीवी का कपड़ा, मेज़ का कपड़ा, अपने स्वेटर वगैरह जान पूछ कर धुलवाती। जब बेटा आता तो अपना कोई सूट हाथ से धोने नीचे बैठ जाती। वो ऊपर आकर गुस्से गुस्से से कहता खाना दो। वो उससे हर वक्त मूड ऑफ करके रखता।
बहू को कभी जाना होता तो सास साथ जाती और गाड़ी में आगे बैठती। उसे कभी शौहर के साथ ना अकेले जाने देती ना अकेले बैठने देती। उससे कहती कि मेरा सारा दिन तुम्हें क्या पता किस मुश्किल और अजियत से गुजरता है। दोनों माँ बेटा मेरा जीना हराम कर रखते हैं। वो बात ही बात बीवी से अकड़ कर बात करता, कभी कोई मशवरा ना करता, हर बात का मशवरा अपनी माँ से करता। ना ही वो उसे अच्छे कपड़े सिलवाने देती ना खरीदने देती। वो हर वक्त काम में लगी रहती। ससुर की वफात के बाद सास ने मुलाजमा की भी छुट्टी करवा दी थी, मगर फिर भी अक्सर वो उससे मिलने आती और सास उसकी मेहमानों की तरह खिदमत करवाती। वो हर वक्त उसकी सास के साथ सरगोशियों में लगी रहती। कई मर्तबा घर से खून भरे तावीज़ निकलते। वो काम वाली उसे ला कर देती तो वो कभी पौधों में रखती तो कभी छत पर। उनके कमरे के ऊपर मिट्टी की परात भरकर पानी की रखती। अजलान की माँ समझती शायद परिंदों के पीने के लिए रखती है। एक बार उसने वो पानी गर्म हो गया और उसे गिराने के लिए उठाने लगी ताकि ठंडा डाल सके, मगर सास ने एक जोरदार गरज से उसे डांट दिया कि यह पानी नहीं गिराना। सुबह अपने बेटे के लिए जूस हमेशा खुद बनाती, बहू को ना बनाने देती। हर वक्त तस्बीह पढ़ पढ़ कर उस पर फूंकती रहती। अगर कभी शेक बनवाती तो सिर्फ अपना और बेटे का बनवाती। उन दोनों को कुछ भी फालतू खाने की इजाज़त ना थी। सास अंडे से पराठा खाती तो बहू अचार से खाती। बेटे को जैम से खिला देती। 10 बजे लाजमी दूध का कप बहू से गर्म करवा कर पीती, मगर उन माँ बेटे के लिए फालतू दूध ना आता। फ्रूट खाती, हर चीज़ खाती, मगर बहू डर कर कुछ ना खा सकती। गोश्त भी खाने को ना देती। शोरबे से उसे खाना पड़ता। वो सब्र के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी कि उसके वालिदैन बहुत गरीब थे और उनके रिश्तेदार अमीर, जो उन्हें लिफ्ट ना कराते थे। वो कहाँ जाती, खुद ही रो रो कर चुप हो जाती। अब तो उसने सब्र और खामोशी इख्तियार कर ली थी, मगर फिर भी सास उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम आयद करके उसे शौहर से जलील करवा देती। वो लड़ाई में साफ लफ्ज़ों में उसे कहती थी कि तू क्या समझती है कि जायदाद नाम करवाने से तू इन सब की मालिक बन जाएगी। तेरी मालकिनी मैं रोज़ निकालूंगी। बेटा कभी बीवी से हंसकर बात भी कर लेता तो वो सख्त जेलिस होती। एक दिन शौहर ऊपर किसी काम से आया तो बीवी ऊपर किसी काम से आई थी। बाहर बिछी चारपाई पर बीवी बैठ गई तो साथ शौहर भी सिगरेट पीते हुए बैठ गया और दोनों बातें करने लगे। सास को बातों की आवाज़ आई तो ज़ोर ज़ोर से बेटे को आवाज़ें देना शुरू कर दी। बहू तो समझ गई और दिल में उसे गुस्सा भी आया, मगर बेटा भागता नीचे गया तो सास बोली, जल्दी जाओ, बाहर तरबूज वाला आया है, बहू को तरबूज खाने का दिल कर रहा था, उसके लिए लेने हैं। वो खुश हो गया कि मेरी माँ को बहू का कितना ख्याल है, मगर बाहर गया तो टमाटर वाला था। वो मजाक करता हुआ आया कि टमाटर ले लो टमाटर। सास ने उसे शौहर के पास से भी उठा दिया और बेटे के दिल में भी अपनी जगह बना ली। एक दिन बेटा बाहर गया तो वहाँ उसे भी बाप की तरह दिल का अटैक हुआ और वो फौत हो गया। अजलान की माँ तड़प तड़प कर रोई। सब हैरान थे कि माँ इस तरह गमज़दा नहीं है जैसे उसे होना चाहिए। आस पड़ोस और ख़ानदान वालों ने मिलकर सारा कफन दफन का इंतज़ाम कर दिया। कुल के बाद सब चले गए और अब सास थी और बहू, मगर सास अब अंदर से डर रही थी कि बहू अब कुल मुख्तार हो गई है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगी और गिन गिन कर बदले लेगी। मगर बहू उसका ज़्यादा ख्याल रखने लगी कि उसने भी अपना बेटा खोया है। सास बाथरूम में गिरी और टांग तुड़वा कर बैठी। अब वो बहू की मोहताज थी। बहू के सर पर खुद काम का बोझ था। पागल बेटे को भी संभालती थी। वो सास की देखभाल भी करती, मगर फिर भी सास को कभी वॉशरूम जाना है तो बहू बेटे को संभाल रही है। अब सास पछताने लगी कि काश उसने बहू पर इतने जादू टोने करके इसके बेटे को पागल न किया होता। काश उसे काम वाली रखने दी होती। उसकी बहू कितनी नेक और अच्छी है, चाहे तो वो उससे गिन गिन कर बदले ले सकती है, मगर उसने हसद की आग में जलकर अपनी जिंदगी को भी मुश्किल बनाए रखा और बहू की जिंदगी भी जहन्नुम बनाए रखी। और बेटा शायद घर बीवी और माँ के दरमियान पिसकर दिल के अटैक से मर गया। उसने बेटे का इलाज करवाया और कहा कि माँ इसे तुम याद से दवा दिया करना, बीवी मेरी काम में मसरूफ़ होती है तो हो सकता है कि वो भूल जाए। उसने मकारी से कहा कि बेटा तू फिक्र ही न कर, मैं दूध के साथ इसे दवा दूंगी। वो दूध खुद पी जाती और दवा कूड़े में भी फेंकती कि कोई देख ना ले और ज़ाया कर देती, पानी में बहा देती। बहू को शक गुजरता कि इसमें बेहतरी नहीं आ रही। कूड़ा चेक करती तो उसमें कुछ ना होता, वो यकीन कर लेती। उसका एतबार जीतने के लिए कभी उसके सामने दवा खिला भी देती। वो ऐसी बीमार हुई कि तड़प तड़प कर रोती और फरियादें करती, माफ़ियाँ मांगती, अपने मरने की खुद दुआएं करती।
बहू ने सारे कारोबार को खुद देखना शुरू किया और इत्तेफाक से ऐसे अच्छे ईमानदार लोग मिले जो पैसों का हिसाब किताब रखता था। वो खुद बहुत गरीब था मगर कभी कोई बेईमानी नहीं की थी। इसको उस पर भरोसा था। जब कोई काम होता तो वो उसे घर भी बुला लेती। सब उसे शाहजी के नाम से बुलाते और उसकी नेक फितरत की वजह से उसकी सब इज्जत करते। सास की फौतगी के बाद अब बेटे को संभालना, फैक्ट्री का माल चेक करना, हिसाब किताब देखना सब अजलान की माँ ने संभाला हुआ था और जेवरात निकालकर कुछ जेवरात बेचकर काम को बढ़ा दिया और अच्छा चलने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार शाहजी से झूठ बोलकर उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। साथ बेटे का इलाज भी शुरू कर दिया और उसमें बेहतरी भी आने लगी। उसने सोचा कि वो लोग भी गरीब मस्कीन लोग हैं, अमीर घर में आ जाएगी और मेरी तरह ढेरों मालो दौलत की मालिक बन जाएगी। मैंने तो ससुराल में बहुत अजियत भरा वक्त गुजारा है मगर वो तो इधर राज करेगी। फिर मुझे और मेरे बेटे को शाहजी जैसे बुजुर्ग और ईमानदार इंसान की ज़रूरत है। शादी उसने सादगी से की। बहू जब शाम होती तो धाड़े मार मार कर रोती क्योंकि अजलान को दौरा किसी भी वक्त पड़ सकता था और वो बहुत डरती थी मगर बहुत गरीब थी इसलिए सास को कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब वो छुपाकर कुछ कमरे में लेकर जाती और शौहर की पॉकेट में डाल देती जिससे वो ठीक हो जाता। एक दिन सास टोह में रही और जो ही अजलान की बीवी वो चीज़ ले जाकर शौहर की जेब में डालने लगी तो झट से सास ने उससे छीन कर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए कि वो तो उसकी अपनी फ़ोटो थी। बहू ने सफाई देते हुए कहा कि जब अजलान को दौरा पड़ता है तो वो उसे आपकी फ़ोटो दिखाती है तो वो ठीक हो जाता है। सास ने रोते हुए उसे गले लगाकर माफ़ी मांगते हुए कहा कि ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला क्योंकि मैं औलाद की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गई थी। अगर तुम मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं नहीं रोकूंगी। अजलान की बीवी ने कहा, नहीं, मैं कभी अजलान को नहीं छोड़कर जाऊंगी। मुझे लगता है ये बचपन में किसी खौफ का शिकार रहा है। जब सास ने उसे अपनी सारी आपबीती सुनाई तो वो रोते हुए उनके गले लगकर जज्बाती होकर बोली, आपने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, अब मैं बेटी बनकर आपका साथ दूंगी। हम मिलकर अजलान को ठीक करेंगे, इसका इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिसने मेरे सब्र का सिला शाहजी और बहू की सूरत में दिया। अजलान का इलाज होने लगा। बहू उस पर बहुत तवज्जो देती, उसका डर निकालने की कोशिश करती, उसको बहादुर बनाने की कोशिश करती। बहू की मोहब्बत और तवज्जो से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और ऐसा तंदुरुस्त हुआ जैसे कभी बीमार ही ना था। अल्लाह ताला ने 2 बच्चे भी अता किए, एक बेटा एक बेटी। पोता पोती मेरी जान है। बेटा अब कारोबार देखता है और शाहजी को और उनकी बेगम को घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया है। मैं और शाहजी की बीवी अब मिलकर बच्चों के साथ मगन रहती हैं, उनको संभालती हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा भी ठीक हो सकेगा। मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगेगी, मैं पोते पोती को गोद में खिलाऊंगी। बहू मेरी बहुत इज्जत और खिदमत करती है। मैंने भी बहू की सहूलत के लिए फुल टाइम मुलाजमा रख कर दी है कि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए, ना कि मेरी खिदमत में लगी रहे। उसे मैंने ड्राइविंग भी सिखाने के लिए कोर्स करवाया है। उसके इस्तेमाल के लिए उसे अलग से गाड़ी लेकर दी है। वो मार्केट चली जाती है, बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। घर का सारा कंट्रोल मैंने उसे दे दिया है और अब बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। बहू मेरी बहुत मशकूर रहती है कि आप जैसी सास दुनिया में किसी की भी नहीं है। मेरे लिए शॉपिंग करती है, सब ज़रूरियात पूरी करती है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। मेरा बेटा उसके साथ जब खुश होकर कहकहे लगाता है तो मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है और मैं उन दोनों की जोड़ी सदा कायम रहने की दुआएं करती हूँ। शाहजी जब बीमार हुए तो बेटा मेरा उनकी बहुत खिदमत करता कि उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया और मेरे कारोबार पर उन्होंने बहुत मेहनत की, जिसका सिला उनकी औलाद को मिला। उनकी बेटी आज घर पर राज कर रही है। मैंने बेटे से कहा कि तुम बिजनेस की समझ बूझ अपनी बीवी को भी सिखाओ और उसे भी अपने साथ शामिल करो। शाहजी की वफात पर मेरा बेटा धाड़े मार मार कर रोया कि वो बेटी को संभालता, बेटी को उसे संभालना पड़ा। मेरा बेटा कहता कि वो मेरा दायां बाजू थे। जल्द ही अजलान की बीवी ने अपने आप को भी संभाल लिया और घर को भी। माँ को भी तसल्ली देती रहती ताकि वो भी इस गम से उभर सके। मैंने शाहजी की बीवी को अपने रूम में शिफ्ट कर लिया और अब हम दोनों सहेलियों की तरह रहती। पास करीबी पार्क में एक मुलाजमा के साथ बच्चों को लेकर जाती। बेटा मेरा कहता था कि मैं तालीम मुकम्मल न कर सका मगर मैं बच्चों को ज़रूर आला तालीम दिलवाऊंगा और साथ दीनी तालीम के लिए घर में कारी रखा गया और बच्चे उससे दीन का सबक सीखते।
بہو نے ایم اے کیا ہوا تھا. اس نے بچوں کو ٹیوشن نہیں لگائی بلکہ خود پڑھاتی تھی. ساتھ قاری کے پڑھانے کو بھی دیکھتی تھی کہ وہ صحیح پڑھا رہا ہے. بچوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی. قاری کے پاس اکیلے نہیں بٹھاتی تھی. میں یا نانی بیٹھتے اور چکر لگاتے رہتے تھے. اسکول بھی خود چھوڑنے جاتی تھی کہ کسی پر آج کل بھروسہ نہیں رہا. ہم اور زندگی میں ایک بار ہم پر حج فرض ہے. وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں نعمتیں دینے کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے. آمین. امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی. تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں.